Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on summaries of European classics. I have already informed you that I am going to start a new series in which I will provide you the summaries of the most important classics of English literature. So this is the first video of that series, Know Your Text series part 1, and we will start with the summaries of European classics. So as you all know, there are many important texts in European literature. So we will start our first video with three important texts. First is Oedipus Rex, then Ovid's Metamorphosis, and then Dante's Divine Comedy. तो इन तीनों टेक्स्ट की समरीज आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, डिटेल्ड समरीज एंड अदर एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Vrishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature 3 times and have also qualified West Bengal state examination. I have 1 year of teaching experience. Moreover, I have also topped in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. And so this now we will start our class summaries of European classics. But before starting, I want to give you an information कि जिन्होंने भी गेट एग्जाम का फॉर्म आप ने फिल किया है, गेट 2022 एग्जाम, तो गेट आईआईटी खड़गपुर हैज रिलीज्ड अ डेट शीट फॉर योर गेट एग्जाम, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा. तो ह्यूमैनिटीज का एग्जाम जो है, मैंने देखा XH कोड है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स का, उसका एग्जाम है 6 फरवरी संडे इन सेकेंड शिफ्ट, मतलब आफ्टरनून शिफ्ट में 2:30 PM टू 5:30 PM तक. तो एडमिट कार्ड आपको जल्दी मिल जाएगा, 3 जनवरी तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा. एंड फरवरी के 6 में आपका एग्जाम है. मैं ह्यूमैनिटीज के बता रही हूँ, तो आप चेक कर लेना एक बार आपकी ऑफिशियल वेबसाइट में gate.iitkgp.ac.in. This is the official website of GATE exam 2022. So please check the detailed date sheet of all exams. So subject wise date sheets आपके मेंशन है, उसमें से ह्यूमैनिटीज का जो एग्जामिनेशन है इंक्लूडिंग योर इंग्लिश लिटरेचर, उसके एग्जाम है 6 फरवरी संडे इन आफ्टरनून शिफ्ट. ओके, तो यही इंफॉर्मेशन था. चलो अब क्लास में आते हैं. समरीज ऑफ यूरोपियन क्लासिक्स. So the first text we will going to talk about, that is Oedipus Rex. I hope आप सबने पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है. 429 BC के आसपास अप्रोक्स ये लिखा गया था. तो इसका मतलब एग्जैक्ट डेट बताना मुश्किल है, बिकॉज दीज आर ऑल पार्ट ऑफ एंशियंट क्लासिक्स. ठीक है, सो अप्रोक्स बताए जाते हैं कि 429 BC में it was written by Sophocles. So very important play, and Oedipus Rex is a very classic text जो कि इंग्लिश लिटरेचर में आपको पढ़ना ही होता है. एंड यहाँ से फ्रॉइड ने डेवलप किया था एडिपस कॉम्प्लेक्स. You have all read about Sigmund Freud in psychoanalytic theory, and Oedipus complex is a very important concept जो कि इसी प्ले से आए हैं. तो Oedipus Rex का डिटेल्ड समरी अभी हम बात करने जा रहे हैं. So let's start. Oedipus Rex is a classic play written by Sophocles. तो क्या इसका प्लॉट है? बेसिकली किंग ऑफ थीब्स. थीब्स में इसका मेन सेटिंग है. Laius was the king of Thebes. And Oedipus Rex is such a play. It is actually based on prophecies and foretellings. मतलब पूरा का पूरा प्ले का जो थीम है वो प्रोफेसी के ऊपर ही बेस्ड. ठीक है, तो इसमें प्रोफेसी क्या है? Laius was the king of Thebes and he heard a prophecy about himself. तो उसमें ये बताया गया था that his son would kill his father and marry his mother. ठीक है, तो ये प्रोफेसी था कि उसका जो बेटा, किंग लायस का जो बेटा होगा, दैट वुड किल हिज फादर, ही वुड किल हिज फादर एंड मैरी हिज ओन मदर. तो ये प्रोफेसी था, एंड इट इज अ वेरी ब्लास्फेमस थिंग टू डू एट दैट पर्टिकुलर टाइम, एंशियंट टाइम में, जो कि बहुत ही एक शॉकिंग चीज है एंड वेरी एबनॉर्मल थिंग.
ठीक है, तो it was mentioned in the prophecy, in the foretelling. Okay, now when King Laius knew about this prophecy, he was also naturally very shocked and horrified, so he ordered his wife Jocasta to kill the boy. When his son was born, so Laius ordered that no, this child should not remain alive, because if my child will remain alive, then I will be killed. ठीक है, तो इस पाप से बचने के लिए, इस सिन से बचने के लिए लायस ने क्या ऑर्डर दिया अपनी वाइफ जोकास्टा को कि आप अपने बच्चे को मार दो, टू किल द बॉय। बट जोकास्टा, as she was the mother, so she failed to do that murder। ठीक है, तो वो नहीं मार सका अपने बच्ची को, एंड गेव इट टू अ सर्वेंट। तो जोकास्टा गेव इट टू अ सर्वेंट एंड allowed the servant to do whatever he want, to do whatever he want about this boy। ओके, सो जोकास्टा ने अपने बच्चे को एक सर्वेंट को दे दिया कि भाई आपको जो करना है करो, बिकॉज आई कैन नॉट किल माई चाइल्ड, whatever he or she will be, I cannot kill। Okay, now what happens that when it gave he sorry she gave it to servant, his feet was tied together with a pin, so very pathetically tortured this particular boy। तो सर्वेंट ने क्या किया, उसके दोनों पैर को एक पिन से जोड़ दिया, सो दैट ही कुड नॉट मूव, एंड वो मतलब कहीं पर भी उसको किसी भी स्थिति में उसको कोई ले ना जा सके, इसलिए उसके पैरों को पिन से बांध दिया था। किसने बांध दिया था? वो सर्वेंट ने। Now what happened that the servant actually abandoned the boy after tying his feet together with a pin। Now what happens that is Shepherd rescued him and gave the name Oedipus। यही जो बच्चा है इसी का नाम है Oedipus, the main hero। तो हीरो वॉज बॉर्न, एंड एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा स्टोरी है वो फ्लैशबैक में बताए जा रहे हैं। फ्लैशबैक में कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली, जो जिस तरीके से स्टोरी स्टार्ट होता है कि द होल कंट्री ऑफ थीव्स वाज अटैक्ड बाय प्लेग, एंड देयर वाज नो पर्टिकुलर रीजन दैट क्यों ये प्लेग हो रहा है, क्या इसका मतलब अचानक से ऐसे डिजास्टर कैसे आ गया, तो इसका कारण ढूंढते हुए ये स्टोरी सामने आ रही है। ठीक है, सो एक्चुअली दिस वाज स्टोरी टोल्ड इन फ्लैशबैक, बट मैं आपको बिगिनिंग में ही बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सो अ शेफर्ड रेस्क्यूड हिम एंड गिव द नेम इडिपस। नाउ व्हाट हैपेंस दैट किंग पॉलीबस ऑफ कोरिंथ अडॉप्टेड हिम। ये शायद एक बार क्वेश्चन में आया था कि हु वाज द अडॉप्टेड फादर ऑफ इडिपस, दैट वाज किंग पॉलीबस ऑफ कोरिंथ। ओके, तो ये उसको अडॉप्ट कर रहे हैं इडिपस को। तो इडिपस वाज फाइनली सेव्ड। ओके, जो किंग लायस का जो प्लान था कि उसको मार देने का, वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। फाइनली ही वाज सेव्ड, बट दिस इंसिडेंट वाज नॉट नोन टू लायस और जोकास्टा। वो लोग सोच रहे थे कि इडिपस वाज डेड। ओके, नाउ किंग पॉलीबस ऑफ कोरिंथ अडॉप्टेड हिम। नाउ लेटर व्हाट हैपेंस दैट, अच्छा उससे पहले इडिपस नेम का जो मीनिंग है, इट मीन्स सोल एंड फूड। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये याद रखना, नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम, बट अगर आप इडिपस रेक्स अपनी ग्रेजुएशन में मास्टर्स में पढ़ रहे हो तो उसमें भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। इडिपस मीन्स सोल एंड फूड। नेम का मतलब है सोल एंड फूड। व्हाई सोल एंड फूड? बिकॉज व्हेन ही वाज बैनिश्ड बाय द सर्वेंट, हिज फीट वाज टाइड विद अ पिन, तो इसीलिए इसको नेम दे दिया गया था सोल एंड फूड। सो ही वाज वेरी टॉर्चर्ड काइंड ऑफ अ फेलो, एंड ये जो पिन से बांधने का जो इंसिडेंट है, इससे आप बहुत ही सिमिलैरिटी है, रिलेट कर सकते हो द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस। राइट, जीसस के क्रूसिफिक्शन के टाइम भी यही हुआ था, तो यू कैन रिलेट इट विद दैट। ओके, so the name Oedipus means soul and food। Now gradually when Oedipus grown up, he realized that he was not the son of King Polybus। तो ग्रेजुअली वो कुछ रूमर्स सुनते हैं एंड उसको ये पता चलता है कि वो कोरिंथ में किंग पॉलीबस का बेटा नहीं है। समहाउ ही have come here, but he is not the actual resident of Corinth। तो ये उसको पता चलता है। नाउ व्हाट हैपेंस दैट ही लेफ्ट फॉर थीव्स इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स। तो एक्चुअली वो थीव्स में नहीं जाते हैं, वो मतलब अपने पेरेंट को सर्च करते हुए वो घर से बाहर जाते हैं, एंड घूमते घूमते वो थीव्स में ही आते हैं ड्यू टू दैट पर्टिकुलर प्रोफेसी, डेस्टिनी।
तो डेस्टिनी उसे थीब्स में लेकर आते। नाउ व्हेन ही वाज कमिंग टू थीब्स, रास्ते में एक इंसिडेंट होता है। ऑन हिज वे ही मेट एन ओल्ड मैन हु वाज एक्चुअली लायर्स। तो जो प्रोफेसी का फर्स्ट पार्ट था दैट इडिपस विल किल हिज फादर, वो अब फुलफिल होने जा रहे हैं। सो इडिपस मेट एन ओल्ड मैन हु वाज एक्चुअली लायर्स। नाउ इडिपस did not know that he was Laius, and Oedipus also did not know that Laius was his father. तो एक ओल्ड मैन के साथ उसका मुलाकात होता है। नाउ व्हाट हैपेंस दैट दे मेट इन ए पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच इज एक्चुअली अ मीटिंग पॉइंट ऑफ 3-4 रोड्स एक्चुअली। तो जिसको हम एक मतलब मीटिंग पॉइंट होते हैं जिसमें सारे रोड आकर मिलता है, ऐसे एक पार्ट होता है हर जगह में। तो ये जो मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर लायस एंड इडिपस दोनों का मीटिंग होता है, व्हिच इज एक्चुअली अ मीटिंग पॉइंट ऑफ 2-3 रोड्स। ओके, नाउ एक क्वारल स्टार्ट होता है कि कौन से रोड में जाना है। सो किंग लायस एंड इडिपस बोथ ऑफ देम स्टार्टेड क्वारलिंग बिटवीन ईच अदर, एंड ड्यू टू द क्वारल व्हाट हैपेंस दैट इडिपस ऑल ऑफ ए सडन किल्ड द मैन। तो ये बहुत ही मतलब एक ड्रास्टिक एटीट्यूड था एडिपस के तरफ से, बट एडिपस शायद वो मारना नहीं चाहते थे, बट फाइनली ही किल्ड दैट मैन व्हिच इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द डेस्टिनी और द प्रोफेसी। So Oedipus killed him, and unknowingly Oedipus killed his father. Okay. Now what happens that after killing Laius, when he arrived at Thebes, जब वो एकदम मतलब थीब्स सिटी का जो मेन एंट्रेंस है वहां पर जब वो आते हैं, then what happens that he met the Sphinx. स्फिंक्स आप सबको पता है, द लेजेंडरी स्टैचू, ठीक है। स्फिंक्स जो कि पिरामिड के बाहर है। ओके, तो स्फिंक्स से उसका मुलाकात होता है एंड स्फिंक्स आस्क्ड हिम अ रिडल। तो बेसिकली जब एडिपस यहाँ पर आ रहे थे उस टाइम में थीब्स का क्या परिस्थिति है, वो ये है कि स्फिंक्स सडनली केम देयर एंड वो एक रिडल से सबको परेशान करने लग गए, एंड जो भी उस रिडल का जवाब नहीं दे पाता है उसको ही वो मार देते हैं। So that was the story, or that was the condition of Thebes at that time, and everyone was very much terrified, everyone was horrified। तो सब लोग मतलब बहुत ही टेंशन में है कि कब किसी को मार डाले स्फिंक्स, कुछ पता नहीं। तो ऐसा एक टाइम चल रहा है व्हेन इडिपस केम टू थीब्स, एंड नेचुरली जो भी थीब्स में आ रहे हैं उसी को स्फिंक्स एंट्रेंस में ही उसको ब्लॉक करते हैं एंड उसको एक क्वेश्चन पूछते हैं, रिडल। एंड इफ द मैन करेक्टली आंसर द रिडल देन ही कुड गो। बट जो हुआ है कि अभी तक किसी ने भी इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाए, एंड स्फिंक्स हैड किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल ड्यू टू दैट। तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन चल रहा था थीब्स में। नाउ इडिपस फाइनली मेट द स्फिंक्स, एंड स्फिंक्स नेचुरली उसको भी ये रिडल पूछता है। तो वो रिडल है क्या? वो रिडल कुछ इस तरीके का था कि द स्फिंक्स इज आस्किंग दैट नेम द क्रीचर हु कैन वॉक इन हिज चाइल्डहुड इन 4 legs, इन adulthood in 2 legs, and in the old age 3 legs, ऐसे करके कुछ था। तो इडिपस ने आंसर दिया कि ह्यूमन बीइंग्स जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो दोनों हाथों से और दोनों पैरों से चलता है, तो 4 लेग्स। एंड व्हेन ही बिकेम एडल्ट, तो तब वो अपने 2 पैरों से चलता है, एंड जब वो ओल्ड हो जाते हैं तब उसके दोनों पैरों के साथ एक स्टिक होता है, ठीक है, जिसके ऊपर वो सपोर्ट लेकर के चलता है। तो ये इडिपस ने आंसर दिया था कि ह्यूमन बीइंग्स विल बी द करेक्ट आंसर। एंड व्हेन इडिपस आंसर्ड करेक्टली, तो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी, एंड स्फिंक्स भी वहां से चला गया अकॉर्डिंग टू द रूल। तो द पीपल ऑफ थीब्स वर वेरी हैप्पी दैट यस इडिपस वाज द मैन जिन्होंने इस रिडल का आंसर दिया। उनको खुद ही पता नहीं कि इडिपस एक्चुअली थीब्स का ही रेसिडेंट है। तो बाद में जब खबर आई कि किंग लायस वाज किल्ड, तो तब वहां पर कोई नहीं था इसमें बैठने के लिए, ठीक है। तो सब लोगों ने कहा कि यस इडिपस वाज आवर सेवियर। तो जब इडिपस ने हमको सेव किया तो उसी को हम राजा बना देते हैं थीब्स का। तो नेचुरली व्हाट हैपेंस दैट इडिपस डिक्लेयर्ड एज किंग ऑफ थीब्स, एंड वेरी मतलब ऑल ऑफ ए सडन ये सारी चीज हो रहा है। इडिपस अचानक से आ रहे हैं एंड उसको किंग घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। सो इडिपस डिक्लेयर्ड एज किंग ऑफ थीब्स। नाउ व्हाट हैपेंस दैट नेचुरली जो रूल है कि जोकास्टा वाज नाउ अ विडो बिकॉज हर हस्बैंड वाज किल्ड बाय इडिपस। तो नेचुरली क्या होता है कि इडिपस जोकास्टा को
मैरी करता है एंड जोकास्टा आल्सो एग्रीज टू मैरी इडिपस, सो द होल प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड। बट किस तरीके से फुलफिल होता है? अननोइंगली। जोकास्टा को भी ये पता नहीं कि इडिपस वाज दैट मैन, लायस को भी पता नहीं था एंड इडिपस को भी पता नहीं था कि जोकास्टा वाज हिज ओन मदर। ठीक है, तो अननोइंगली ये प्रोफेसी फुलफिल हो जाते हैं। नाउ आफ्टर दैट मैरिज व्हाट हैपेंस, जिससे प्ले एक्चुअली ओपन होता है, किंग ऑफ द सॉरी द सिटी ऑफ थीव्स वाज स्ट्रक विथ प्लेग। प्लेग आ गया अचानक से एंड प्लेग आप सब जानते हो कि लिटरेचर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है। कई सारे वर्क में हमें प्लेग का मेंशन हमें मिलता है, बिकॉज एट दैट टाइम प्लेग वाज सच अ डिजीज जिसका कोई मेडिसिन नहीं था, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था। So plague, whenever plague broke out in a particular place, it turned into an epidemic and it destroyed the whole village or whole city. तो अचानक से क्या हुआ जब इडिपस को किंग घोषित कर दिया गया, इडिपस मैरिड जोकास्टा। नाउ थीव्स वाज स्ट्रक विथ प्लेग। नाउ ऑल ऑफ अ सडन प्लेग आ गया है, तो किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से प्लेग आए हैं, क्यों आए हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। So everyone was very much panicked due to that. Now the people requested Oedipus to help them. तो सारे थीव्स का जो पीपल है वो एडिपस के पास आते हैं कि आप राजा हो, आप कुछ करो। बिकॉज क्यों वो एडिपस के पास आते हैं? बिकॉज दे बिलीव दैट एडिपस हैड द कैपेबिलिटी टू सेव देम, बिकॉज एडिपस अर्लियर सेव्ड देम फ्रॉम द tyranny ऑफ द स्फिंक्स। तो स्फिंक्स से वो बचाए थे बहुत मिराक्यूलसली एंड वेरी ब्रिलियंटली। तो लोग सब उनके ऊपर विश्वास करने लगे कि एक ही पर्सन है जो हमें बचा सकता है, दैट इज एडिपस। सो सारे थीव्स के लोग एडिपस के पास आकर हेल्प मांगते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस दैट एडिपस कुड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज। अगर आपको कॉज ही नहीं पता चलता है तो आप कैसे काम करोगे? राइट, सबसे पहले अगर कोई इंसिडेंट होता है वी नीड टू नो द कॉज कि ये क्यों हो रहा है। देन वी हैव टू थिंक दैट वेदर वी कैन स्टॉप दिस कॉज और वी कैन अवॉइड इट और नॉट। तो इडिपस को यही समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से प्लेग कहां से आ गई। इडिपस कुड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज। नाउ व्हाट हैपेंस, ही सेंट क्रियन, हिज ब्रदर इन लॉ, टू अपोलो। अपोलो, गॉड अपोलो। तो इडिपस अपने ब्रदर इन लॉ क्रेओन को भेजता है अपोलो के पास टू नो और एटलीस्ट टू गेट अ डायरेक्शन कि किस रास्ते में जाकर वो इसको कंट्रोल कर सकता है, व्हाट टू डू नाउ। तो एक मतलब डिस्कशन करने के लिए वो क्रेओन को भेजा है अपोलो के पास। नाउ अपोलो में जो ओराकल, मतलब अपोलो का जो ओराकल है या फिर ओराकल ऑफ डेल्फी आप कह सकते हो, तो ओराकल ऑफ डेल्फी कह रहा है, द ओराकल सेड दैट द मर्डरर ऑफ लायस must be punished to save the city. That was again another riddle. तो अपोलो क्या कहता है, ओराकल क्या कहता है, जब क्रेओन जाते हैं उसके पास कि हम क्या करें, ऐसे प्लेग आ गया है तो इसको हम कैसे दूर करें। तो एज ए रेमेडी द ओराकल वाज सेइंग दैट लायस का जो मर्डरर है उसको हमें पनिशमेंट देना है, because that was a sin committed by the whole city of Thebes. And what happens that as Laius was killed very unnaturally and without any proper reason actually, so that was a sin, और इस sin के कारण क्या हो रहा है, प्लेग हो रहा है। इससे आप याद करो, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था द प्लेग बाय एल्बर्ट काम्यू, राइट। तो एल्बर्ट कामू का जो नॉवल है प्लेग, उसमें भी यही बताए जा रहे हैं कि प्लेग वाज एक्चुअली हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर सिटी बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस इनटॉलरेंस। तो आप गॉड को नहीं मानते हो, आपने शायद कुछ ऐसा काम किया जिसमें बहुत ही ज्यादा सिन आपने कमिट किया है, तो ये गॉड का पनिशमेंट है। बट बाद में डॉक्टर ये प्रूव कर रहा है कि नो, दिस इज नॉट द थिंग, एक्चुअली रैट से ये प्लेग आ रहे हैं। ठीक है, तो वही बात। तो मर्डरर ऑफ लायर्स मस्ट बी पनिश टू सेव द सिटी। ओरेकल कह रहा है कि यही एक सिन है जो थीव्स ने कमिट किया है एंड दैट वाज एक्चुअली द पनिशमेंट गिवन बाय गॉड। So if you want to get out of that danger, तो find out the murderer of Laius and punish him. अदरवाइज ये नहीं होगा। नाउ क्रेओन वापस आकर इडिपस को ये कहता है कि इस कंट्री का जो पहले का राजा था लायस, उसके मर्डरर को पनिशमेंट देना है। एंड इडिपस वाउड टू डू सो, व्हिच इज अगेन ए ड्रामेटिक आयरन, राइट। इडिपस हिमसेल्फ was the murderer, but Oedipus did not know that. तो Oedipus प्रॉमिस करता है कि यस, मैं अपनी कंट्री की भलाई के लिए उसको जरूर मैं पनिशमेंट प्रोवाइड करूंगा। If that was the only way to get rid of the plague, then I must do that, and I will definitely do that. Oedipus promised to punish that murderer. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हाउ टू पनिश, अब उसको मतलब
कौन सी जगह में उसको ढूंढे उस मर्डरर को। तो इसके लिए एडिपस टुक हेल्प फ्रॉम अ ब्लाइंड प्रॉफिट जिसका नाम था टायरसियस। टायरसियस के पास वो जाते हैं एंड ही वाज अ वेरी वेरी फेमस प्रॉफिट इन ग्रीक culture or Greek literature. You will get the name of Tarsus in many important European classical texts. So he took help from a blind prophet Tiresias, and Tiresias actually revealed the truth that you are the murderer. You have killed Laius, and this was the earlier prophecy जो Tiresias उनको बता रहे हैं. But Oedipus misunderstood it as a plot of Creon to overthrow him. Oedipus could not believe that. Oedipus said that okay, it was actually the plot of Creon, that Creon actually told Tiresias to convince Oedipus in such a way so that ये सुनकर अगर Oedipus अपने आप को punishment दे या फिर वो खुद इस country छोड़कर चले जाए, then Creon will be the फ्यूचर किंग। तो एडिपस क्या कर रहा है इन रिटर्न, वो टायरसियस को ही एक्यूज कर रहे हैं कि यू हैव डन अ रॉन्ग थिंग एंड ही डिसाइडेड टू बैनिश क्रेन आल्सो। तो एडिपस कुड नॉट बिलीव दैट ही हैड डन सच अ रॉन्ग थिंग। नाउ बाद में जोकास्टा कंफर्म्ड हिम अबाउट द प्रोफेसी। जब जोकास्टा को भी टायरसियस ये बताता है तो जोकास्टा रियलाइज दैट यस द प्रोफेसी हैड ऑलरेडी बीन फुलफिल्ड। सो जोकास्टा फाइनली कंफर्म दैट यस दिस वाज ट्रू। Now, when Jocasta confirmed him and Jocasta herself came to know that this was true, she hanged herself. Jocasta committed suicide because that was a great sin that a mother married his own son. ठीक है, सो जब जोकास्टा को ये पता चलता है, जोकास्टा हैंग्ड हरसेल्फ, एंड जब इडिपस को ये ट्रूथ पता चलता है कि ही मैरिड हिज ओन मदर, सो इडिपस ब्लाइंडेड हिमसेल्फ। एज अ ट्रेजिक हीरो एडिपस ने अपने आप को पनिशमेंट दिया, ही ब्लाइंडेड हिमसेल्फ। So very gruesome scene, right? And finally he is banished from. तो इससे प्ले एंड होता है। एंड ज्यादातर अगर आप इडिपस रेक्स के कवर पेज देखोगे, मैक्सिमम बुक का यही कवर पेज होता है कि इडिपस अपने आप को ब्लाइंड कर लिया है एंड उसके आंखों से ब्लड बाहर आ रहे। सो दैट वाज अ वेरी ग्रूसम सीन जो अक्सर इमेज आपको मिलेगा इडिपस का। तो इडिपस रेक्स दैट वाज द प्ले। एंड इसके कई सारे नाम हैं, इडिपस रेक्स है, इडिपस टिरेनस है, इडिपस टिरेनस, सेम प्ले है बट कई सारे नेम है। ठीक है, so that was the play Oedipus Rex, very common play. I hope you have all read that and very important from net point of view also. Okay, so that was our first text. Now moving on to next important text, very important, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस दो बुक है, एक काफ्का ने लिखा था जो हमने ऑलरेडी बात की है, ठीक है, ग्रेगोर सामसा। मैं फिर इन डिटेल समरी आपको बता दूंगी किसी क्लास में। तो ग्रेगोर सामसा का जो स्टोरी है, ग्रेगोर सामसा ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इंसेक्ट एंड उसके लाइफ स्टोरी जो काफ्का ने लिखा था। बट ये जो मेटामॉर्फोसिस हम बात कर रहे हैं दैट इज रिटन बाय ओविड, द फेमस रोमन पोएट। So metamorphosis written by Ovid and written in dactylic hexameter, very important. So it was a very long book. Metamorphosis एक बहुत बड़ा वर्क है, 15 बुक्स में डिवाइडेड है, तो एक एपिकल वर्क मेटामॉर्फोसिस एंड कलेक्शन ऑफ 250 मिथ्स। तो बेसिकली इसमें है क्या, इसमें कई सारे मिथ्स का कलेक्शन है। सो डिसजॉइंटेड स्टोरीज, ठीक है, डिफरेंट मिथ्स को एक साथ जुड़कर मेटामॉर्फोसिस लिखा गया है। एंड किस टाइप का मिथ लिखा गया है, जिसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही लंबा, इसका समरी भी बहुत लंबा है, मैं उतनी डिटेल्स में आपको नहीं बताऊंगी बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। मैं जो इंपॉर्टेंट मिथ्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इट वाज एन एपिक पोएम डिस्क्राइबिंग द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम इट्स क्रिएशन अप टू जूलियस सीजर। यू कैन इमेजिन इट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट, राइट, कि एकदम बिगिनिंग से हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम इट्स क्रिएशन अप टू जूलियस सीजर, तो एक ह्यूज क्रोनोलॉजिकल टाइम पीरियड मेटामॉर्फोसिस कवर अप कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एक लाइन में आप समरी बता दो तो यही समरी है कि इट इज एक्चुअली कलेक्टिंग ऑल द मिथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड अप टू जूलियस सीजर। ओके, तो स्टार्ट कैसे होता है, नेचुरली जैसे एपिक पोएट्री स्टार्ट होता है म्यूज को इन्वोक करके, इन्वोकेशन टू द म्यूज, तो मेटामॉर्फोसिस भी उसी टाइप से स्टार्ट होता है। Taking blessings from the muses, Ovid starts his tale describing the change from gold age to age of iron. You have read in history, there are so many different ages, ठीक है, स्टोन एज, उसके बाद किस तरीके से चेंज होता है मॉडर्न तक, तो वो चेंज के बारे में ओविड वाज सेइंग
in the beginning. Now, next, what happens that he told the story of creation of the world, जो कि बाइबल में भी बताया गया है, कई सारे वर्क्स में डिफरेंट फॉर्मेट में इसको बताया गया है. तो ओविड ने क्या स्टोरी बताया क्रिएशन का? द जायंट्स टुक द कंट्रोल ऑफ हीवन. व्हाट हैपेंस दैट जायंट्स ने हीवन के कंट्रोल ले लिए थे, एंड एज ए पनिशमेंट ऑफ दैट, जोब, the central god, Job sends flood and destroys everything. So that was the purpose of cleansing flood, इसको कहा जाता है क्लिनजिंग फ्लड और ग्रेट फ्लड, जो कि बाइबल में भी बताए गए हैं कि एक फ्लड आए थे उस टाइम. उसका पर्पस ये था कि दुनिया में जितने भी पाप है उसको वॉश आउट करने के लिए. सो दैट इज व्हाई क्लिनजिंग फ्लड, और क्लिनजिंग पर्पस के लिए ये फ्लड कंडक्ट करवाया जा रहा था बाय जोब. सो जोब सेंड्स द फ्लड एंड डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग जस्ट टू वॉश आउट द अर्थ, जस्ट टू प्यूरिफाई द अर्थ from all sorts of corruption. Now what happens that everything is destroyed, every creature is destroyed, but only two people were saved, जिसका नाम था डिकोलियन एंड फिरा. तो दैट वाज ओविड स्टोरी, डिकोलियन एंड फिरा. और इसको आप बता सकते हो बाइबल में जिसको हम नोआज आर्क, राइट? तो वही सेम स्टोरी वो बता रहे हैं. डिकोलियन एंड फिरा आर सेव्ड एंड रीपॉपुलेट्स द वर्ल्ड. तो इसके थ्रू क्या होता है? वो रीपॉपुलेट करता है वर्ल्ड को, जो हमारी हिंदू मिथोलॉजी में बताया गया है कि मनु एंड शतरूपा, Monu and Shatarupa, they are actually the ancestors of human beings, and मनु का जो सन है उसको हम मानव कहते हैं, मानव. ठीक है, जो हमारे हिंदू मिथोलॉजी में है. तो सेम स्टोरी, वही बात है. यहाँ पर जोब का मेंशन है, वहां पर जीसस का मेंशन है बाइबल में, एंड हिंदू मिथोलॉजी में मेंशन है लॉर्ड विष्णु का. Right? So Deucalion and Pyrrha are saved and they repopulates the world with human beings. तो इस तरीके से वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ. Now एक एक करके वो सारे के सारे myths बता रहे. So one important myth is that Apollo's unrequited love transforms Daphne into a laurel tree. तो जितना भी myths वो कह रहा है, देखो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रहा है. एक कोई एक पर्सन वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है. ठीक है, so that is why the title is metamorphosis. Not all myths, सारे myths को नहीं बता रहे, सिर्फ उसी myths को ओविड ने चॉइस किया है जिसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रहा है. तो एक myth ये है कि अपोलो once loved Daphne, woman, but क्या हुआ? That love was unrequited, so Apollo transforms Daphne into a laurel tree. तो एक woman से वो एक laurel tree बन जाती. Now another story क्या है? The river god Inachus's daughter Lo is raped by Job and is transformed into a cow. Again देखो cow में transformation हो रहा है. Okirho the prophetess is turned into a stone. तो ऐसे कई सारे disjointed myths है. ठीक है, Mercury falls in love with Herse's sister Aglaurus is transformed into stone due to her envy. ठीक है, तो इसमें स्टोन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. नाउ यूरोपास ग्रैंडसन, ये शायद आप सबने सुना होगा, ये बहुत ही पॉपुलर मीथ है कि एक्टियन एंड डायना का जो मीथ है. एक्टियन सीज डायना बेदिंग. डायना कौन है? डायना एक्चुअली गॉडेस ऑफ चेस्टिटी, डायना. तो एक्टियन ने क्या किया? एक्टियन सीज डायना बेदिंग in her naked form. Now Diana became very angry and Diana transformed him into a stag, and finally he is killed by his own hounds. तो एक बहुत ही ट्रेजिक डेथ हुआ था एक्टियन का. He is transformed into a stag by the curse of Diana and finally he is killed by his own hounds. ठीक है, तो ये मिथ शायद आप सबने सुना होगा, एक्टियन एंड डायना का मिथ. नाउ जोब्स लवर सीमेल गिव्स बर्थ टू बैकस. बैकस का बर्थ कैसे हुआ? Job's lover Semele gives birth to Bacchus. I have already started a series on important mythological characters. तो मैंने शायद 2-3 वीडियोस उसके ऊपर बनाए थे, बट बीच में आपका एग्जाम आ गया, इसीलिए मैं वो सीरीज स्टॉप कर दिया था. बट अगेन आई विल स्टार्ट दैट सीरीज. उसमें ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक्टियन, डायना, बैकस. ओके, so very important and interesting session will be that. So Job's lover Semele gives birth to Bacchus. Now another myth is that Acrisius objects to the divinity of Bacchus and Perseus. Acrisius ने प्रोटेस्ट किया था
ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस दैट पर्सियस एम्प्लॉयज मेड्यूसा, मेडूसा का नाम भी आप सबने सुना होगा, ठीक है, मेड्यूसा टू फिल हिज लैंड विथ वेनोमस स्नेक। सो मेडूसा एक ऐसा गॉडेस है या फिर एक ऐसा वुमन है जिसके हेड में अक्सर क्या होता है, सरपेंट होता है। so that kind of lady is medusa, the laugh of medusa, right? तो मेडुसा एक ऐसा हॉरिबल कैरेक्टर है जिसके माथे पर हमेशा सांप होता है। so Perseus employs Medusa to fill his land with venomous snakes. Finally, Ovid concludes that his work will live as long as Rome will live. और भी कई सारे myths है, 250 myths है, तो इतना तो बताना मुश्किल है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट myths आपको बता रही हूँ, but you can obviously read the detailed summary if you can. So it concludes that his work will live as long as Rome will live, and ये याद रखना, first translated into English by William Caxton. विलियम कैक्सटन किस लिए फेमस है? प्रिंटिंग प्रेस लाने के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम ही ब्रॉट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, right? So William Caxton actually translated Metamorphosis into English for the first time. So this is an important information to be noted. Okay, ये second work हो गया। Third important work and last work of today's class, that is the Divine Comedy. Very important work and classic work of Dante. Divine Comedy. So Divine Comedy written by Dante, it was also a massive work. Total 14,233 lines है इसमें। ठीक है, आप इमेजिन करो कि कितना लंबा वर्क है। टोटल 100 कैंटोस है। दीज आर माइन्यूट इंफॉर्मेशन जो कि आपको याद रखना है। 14,233 लाइन, ये लाइन मैं अप्रोक्स बता रही हूँ, कई सारे बुक्स में आपको एक दो डिजिट इधर उधर मिल सकते हैं, बट डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, तो कुछ बुक्स में 234 लाइन दिया हुआ है, कुछ बुक में 15,000 लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपको इधर उधर मिलेगा, बट अगर आप मतलब बहुत ही रिलायबल सोर्स की बात करो तो उसमें मैक्सिमम केसेस में दिया है 14,233 लाइन्स। ओके, कंपोज्ड इन टर्जर, टर्जर में ये कंपोज हुआ था। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फर्नो, पार्गेटोरी और पैराडिसो, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एंड ईच सेक्शन, ईच पार्ट हैज 33 कैंटोस प्लस एन इंट्रोडक्टरी कैंटो, तो टोटल इसमें है 100 कैंटो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है टेक्स्ट का। अब इसके अंदर है क्या? दांते हिमसेल्फ इज द नरेटर, एंड इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हेल का स्ट्रक्चर। एक तो हेल आपका डिस्क्रिप्शन आपने पैराडाइज लॉस्ट में देखा है, जो सेटन बता रहा है, मिल्टन लिख रहा है, बट यहाँ पर हेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर दांते ने बताया है कि किस टाइप का लेयर होता है, कौन से लेयर में कौन रहते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। So Dante is the narrator. Now Virgil appears and guides Dante to hell in Inferno. First section जो है Inferno, उसमें ही ये hill का structure बताए जाते हैं, and Virgil actually guides Dante to hell. This has also been asked in some net question paper that Dante को Inferno में कौन किसको मिलता है as a guide? So that was Virgil. Virgil actually guides Dante to hell in Inferno. Now, how does Dante describe hell? Hell has 9 circle, 9 सर्कल है, एंड इसका स्ट्रक्चर क्या है? एक उल्टा कोन की तरह स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है हेल का, जिसमें क्या है कि मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सबसे बॉटम पार्ट है एंड ये सबसे ऊपर का पार्ट है। ठीक है, अपर पार्ट। तो आप नेट में सर्च करोगे तो आपको इमेज भी मिल जाएगा कि दांतेज डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल इन डिवाइन कॉमेडी, अगर आप ऐसे लिखकर सर्च करो तो आपको हेल का जो स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा। 9 पार्ट में डिवाइडेड है। द पीपल हु नीदर एक्सेप्ट नॉर रिजेक्ट गॉड स्टैंड आउटसाइड द गेट ऑफ हेल। तो दिस पर्टिकुलर पीपल आर एक्चुअली वेरी मच कंफ्यूजिंग, कि वो गॉड को सपोर्ट भी नहीं करता, रिजेक्ट नहीं करता, दोनों चीज के बीच में है। ठीक है, तो वो थेइस्ट एथेइस्ट कुछ भी नहीं है, दोनों के बीच में है, तो उसको मतलब हेल में एंट्री नहीं दिया जाता, वो हेल के गेट में खड़ा रहता है। ठीक है, तो इट इज एक्चुअली अनडिसाइडेड कि इसको पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो वो हेल के बाहर रहते हैं, स्टैंड आउटसाइड द गेट ऑफ हेल। नाउ द फर्स्ट सर्कल, अब कौन कौन से सर्कल में कौन कौन है? फर्स्ट सर्कल हैज सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, वर्जिल। ठीक है, जो कि मतलब बहुत ही क्लासिक लोग हैं। ठीक है, सेकंड सर्कल कॉन्टेंस लास्टफुल मैन, सेकंड सर्कल में लास्टफुल मैन होता है। थर्ड सर्कल हैज ग्लटनी, ग्लटनी का मतलब है जो ग्रीडी है। ठीक है, जो बहुत ही खाना पसंद करता है, ग्लटनी।
फोर्थ सर्कल डिपिक्ट्स ग्रीड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली ग्रीड फॉर फूड होगा, ग्रीड फॉर फूड। द फोर्थ सर्कल डिपिक्ट्स ग्रीड, ओके। उसके बाद फिफ्थ सर्कल हैज रॉथफुल एंड डिप्रेसिव मैन। ये बस आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ, ऐसे डिटेल में शायद नहीं आएगा, but to know the summary actually, wrathful and depressive man. Sixth circle contains heretics who opposed God like Satan, okay. Seventh circle has violent people. Eighth circle has frauds, and इसमें ये important चीज है, एक मॉन्स्टर रहता है वहां पर जिसका नाम है गैरियन। तो ये भी शायद एक बार आया था कि गैरियन मॉन्स्टर कौन से लेयर पे हेल में रहते हैं, दैट वाज इन द एट्थ सर्कल। एंड नाइन्थ सर्कल में कौन है, लास्ट सर्कल में, अनट्रस्टवर्दी पीपल एंड एट द कोर ऑफ इट लिव सेटन। सबसे जो हिल का सेंटर पॉइंट है वहां पर सेटन रहता है एज द किंग ऑफ हिल, ठीक है। एंड नाइन्थ सर्कल हैज अनट्रस्टवर्दी पीपल। नाउ सेटन का जो इमेज है वो बहुत ही हॉरिबल है। सेटन को किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, सेटन वाज द किंग ऑफ हिल एंड ही इज चीविंग थ्री ग्रेट सिनर्स। वो तीन सिनर्स को खा रहे हैं। वो तीन सिनर्स कौन है, एक है जूडस, सेकेंड इज ब्रूटस एंड थर्ड इज कैसियस। तो इन तीनों पर्सन, तीनों ग्रेट सिनर इन थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो सेटन उसको खा रहे हैं। सो दैट वाज द इमेज ऑफ हिल। आप इमेजिन करो कि 9 सर्कल में डिवाइडेड है एंड एट द सेंटर पॉइंट सेटन इज सिटिंग इन अ वेरी किंगली जेस्चर। Satan himself is a monster, a demon, and Satan is chewing three great sinners. तीन लोगों को वो खा रहे हैं। So that was the image of hell जो इन्फर्नो में दांते बता रहे। Now next section, purgatorio. Purgatorio कहाँ से आया है, purgatory से आया है। Purgatory is actually a place for purification, और आप कह सकते हो कि ये place of correction, जहां पर आपको पनिशमेंट के थ्रू आपको अपने आप को रीमॉडिफाई करने का एक ऑप्शन मिलता है। सो दैट इज पार्गेटरी। कि पार्गेटरी में आप अगर प्रॉपर तरीके से प्यूरिफाई होते हो तो यू कैन गो बैक टू पैराडाइज। उसके बाद आते हैं पैराडीसो, पैराडाइज, ओके। तो पार्गेटोरियो इज लाइक माउंटेन, एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर 7 लेवल्स है, रिप्रेजेंटिंग 7 डेडली सिंस, ठीक है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एक्चुअली, कि पर्गेटोरियो इज अ माउंटेन। इसमें आपको 7 लेयर मिलेंगे, 7 लेयर में आपको 7 डेडली सिंस दिया गया, एंड ईच एंड एवरी लेयर यू हैव टू गिव अ काइंड ऑफ ट्रायल, मतलब अ काइंड ऑफ टेस्ट, कि अगर आप इन 7 सिंस को आप इस 7 डेडली सिंस को अगर आप कंप्लीट कर पाते हो, अगर आप इसको ओवरकम कर पाते हो, नॉट कंप्लीट, अगर आप इसको ओवरकम कर पाते हो, इसको पीछे छुड़ाकर अगर आप आगे जा सकते हो विदाउट गेटिंग एडिक्टेड टू एनी ऑफ द 7 डेडली सिंस, देन यू विल मूव ऑन टू पैराडाइज। तो इस सेशन, इस 7 लेवल्स में क्या है, आपको कई सारे टेम्पटेशंस मिलेगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ करप्शन आपको देखने को मिलेगा, बट अगर आप उसमें से एडिक्टेड हो जाओगे देन यू विल नॉट गो बैक टू पैराडाइज। बट ये सारी चीज को आपको नेग्लेक्ट करना है, आपको इन सारी चीज को दूर रखना है, एंड देन यू कैन ओनली go to paradise. So you have to win over those 7 deadly sins. You have to overcome those 7 deadly sins. So that is why purgatory. Now पर्गेटोरियो में कौन, पर्गेटोरियो तक वर्जिल दांते के साथ रहता है, एंड वर्जिल वैनिशेस आफ्टर पर्गेटोरियो। नाउ इन पैराडीसो बियाट्रिस टेक्स दांते। बियाट्रिस कौन है, दांतेस बिलावड। So Beatrice takes Dante to Paradiso, which is a magically beautiful place which stands at the top of Purgatory. इसका जो टॉप लेवल है उसमें पैराडाइज है। तो ये सारे लेवल आपको पार करके पैराडाइज में जाना। So it stands at the top of Purgatorio and Beatrice guides Dante to Paradiso. Now Paradise के अंदर भी levels है, 9 spheres है, connected to 9 planet. So very beautiful and interesting setting, right? So Paradise has 9 spheres connected to 9 planets. Now here Dante meets saints and feels at peace. Finally यहाँ पर आकर उसको शांति मिलता है, because it's a very beautiful place without any pain, without any problem. आप बहुत ही मतलब डिवोशनली एंड प्यूरी इन अ प्यूरिफाइड मैनर आप अपनी जिंदगी को बिता सकते हो। सो दैट इज द पार्ट ऑफ आफ्टर लाइफ।
Okay, eternity. So Dante meets saints and feels at peace. So that is actually the brief summary of Divine Comedy. Again, this is also a very long work. मैं बहुत important points मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसमें हेल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बहुत ही, कौन सी पार्ट में कौन रहते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, so that is the end of today's class. I hope this series will help you a lot. मैं ऐसी तरीके से आपको कई सारे वर्ड्स के समरीज बताती रहूंगी, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेना एंड अपने आप के तरफ से भी कुछ देख लेना एक बार समरीज, ठीक है। So that is the end of today's class. Thank you all for joining. This is the link of my Telegram channel. जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लो। And so thank you all. Have a nice day. Bye bye. See you soon in the next class.